अभी भी देख रहा हूं मैं May 26 के लिए ब्रेकिंग न्यूज, आईसीआई की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज, एलिजिबिलिटी ये कर दिया वो कर दिया, अब उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं। नेगेटिव इंसिडेंट अगर 1 होता है तो आप उसे 10 के जैसे देखते हो, पॉजिटिव इंसिडेंट 1 होता है तो आप उसे 1 के जैसे ही देखते हो। 7 सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा कुछ लिखना रहता है, ओपन बुक होने के बाद भी पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है आंसर, और 2-2 सूटकेस लेके जाने पड़ते हैं एग्जाम हॉल में। So hey everyone, I hope you all are doing well. I Dev, on the behalf of CA Rankers, welcome you all to the channel. Today's episode is not just special, it's power packed. Because we have someone with us who didn't just clear CA, but dominated it. A 3-time All India rank holder, All India rank 1 in CAP 1, All India rank 4 in CAP 2, and All India rank 2 in CA final. Yes, you heard that right. He is a chartered accountant, a CIMA qualified professional with prestigious CGMA designation, and an expert in financial reporting, advanced accounting, Indian accounting standards, IFRS, and so much more. He then went on to shape the very journey he once conquered, writing study material for CA Final SCMP and serving as an examiner with ICA. Before becoming one of the most loved educators, he built a strong industry career with giants like BPCL and Shambhira, working in audit, data analytics, and core financial systems. And today, as the co-founder of Indigo Learn and visiting faculty at Nalsar University and ICI, he is shaping the future of finance education. So lock in, eliminate all the distraction, and get ready to learn from the best. Let's get into it. Please welcome CA Suraj Lakhotia. Thank you. Now, to keep this energy going, let's move to our next segment. Joining us, we have very talented CA Kiran Singh ma'am and very talented Soham to take this conversation forward. So let's keep the momentum going. Over to you, Soham. Hello, sir. Welcome to the CA Rankers podcast. We are so glad to have you in our CA Rankers room. So, sir, let's start with the very basic question. सर, आपका बचपन कैसा था? आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? Hi Soham, thanks a lot for having me on the podcast. Going back to childhood, I think I would put myself as a more studious student. I was all after studies only, right? That is what I was focused on most of the times. I had not thought of I'd be taking up chartered accountancy, but around 9th standard is when I figured out that yes, because we had some chartered accountants in our family. That is, and when I saw the respect. Okay, whenever at that point of time, so I'm talking about 2001, 2002, that point of time, whenever someone used to address my chachas and my mamas and all of them, chartered accountant was like, wow, that is a gold professional course, I would say at that point. Even now it is there. So that I thought, okay, once you become a chartered accountant, you can definitely command that respect, and the course has a lot of value. And that is when I thought I'll take up accountancy and chartered accountancy as a profession. Coming from a business background, I was used to financial transactions, the business, how it runs and all of those things. So that also added something when I had to start my CA journey. सर, क्या आप बचपन से ही एक टॉपर इंसान रहे हैं? या आपके स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको आज भी इंस्पायर करता हो? So when you talk about a memorable moment, I think when I topped the district in 10th standard, that is when I felt the happiest. Okay, topping the class was one thing, topping the district was really first step forward. I think rolling forward to getting All India rank 1 in CAP1. Right now we call them as CA Foundation. So I think that was the stepping stone for my getting ranks at all 3 levels of CA. So that is one memory I would definitely recall. सर, आप एक सीए बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी फैमिली में काफ़ी लोग सीए हैं, तो क्या आपने सीए उनको देख के चूज़ किया या फिर आपने क्या अपने लिए क्राइटेरिया रखा हुआ था सीए चूज़ करने का? So I think 2-3 things. One, definitely, a lot of them encouraged me that this is the right profession. But also, I got a couple of warnings. Actually, the principal of my school told me that Suraj, be careful before choosing chartered accountancy, because it is easy to get in, but it is very difficult journey of 4 years. Unlike engineering, where once you crack the entrance exam, the remaining part of the journey is not so tough. So he gave me a very good warning actually at that point of time. Easier to get in and very difficult to get out.
but if you do the work right way, you'll be able to crack it. So I think that motivated me to choose commerce and then subsequently CA. सीए कोर्सेज को लोग ऑफन रिलेट करते हैं स्ट्रेस और प्रेशर के साथ में। सर, अगर आपके पास में एक पावर होती इस चीज़ को कम करने की, तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते या फिर क्या चेंजेस करवाते? Yeah, so is it stressful? Definitely yes. Okay, I had sleepless nights, I must admit that. In CA Foundation, we had one paper called Organization Management. I didn't understand half of it when I read it for the first time. And I still remember, I got up at 3 o'clock at night and I was actually revising. So that was the amount of stress I was carrying at Foundation. And also a lot of stress was there in Inter because Foundation was the first rank. So Inter also there was an expectation that I should get a rank. But then I realized that stress is not the right way. So when I started my preparation for final, I said, okay, I will do what I have to do. I will study the right way. I will do smart study. I will study without taking a lot of stress. So then what I did was I stopped bothering about the outcome at CA final. Sir, I want to ask about your rank journey. You secured all India rank in all the 3 level of CA examination. ये एक्सपेक्टेशन ओवर द टाइम डेवलप हुई या आप पहले से कॉन्फिडेंट थे इसके लिए? ऑल्सो जब आप रैंक स्कोर करते हो तो जो लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। इस पे आपका क्या व्यू है? तो थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा कि व्हेन आई डिड माय सीए फाउंडेशन, दैट इज सीए P1 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं मेरे मासी के साथ था। तो मेरे भैया भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ओके, एंड ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड एक्चुअली। तो उन्होंने साइंस लेके बाद में इंजीनियरिंग नहीं करके, पहले उन्होंने साइंस लिया था, उसके बाद ही स्टार्टेड हिज सीए जर्नी। तो उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट कहा था जब मैं सीए जर्नी जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि इफ यू डोंट गेट अ रैंक यू विल रिपेंट। ओके, गिवन दैट उनको पता था कि मेरे में एबिलिटी है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये भी रहता है कि डाइवर्शंस बहुत सारे रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे रहते हैं। तो उन्होंने एक ही चीज कहा था, अगर इफ यू डोंट गेट अ रैंक यू विल रिपेंट। इनफैक्ट ये मेरे ब्लॉग में भी मैंने लिखा था, आई थिंक वे बैक इन 2008 और 2009, दैट स्टेटमेंट इज स्टिल देयर। तो वो एक एंकर बन गया कि मेरे लिए, हाँ मुझे रैंक लेके आना है, राइट। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि ठीक है, एबिलिटी है, आई हैव द एबिलिटी, लेट मी स्टडी द राइट वे टू गेट अ रैंक। हाँ, आई नेवर टारगेटेड फॉर AIR1 जब मैं CA फाउंडेशन कर रहा था। तो वो जो स्टेटमेंट था कि इफ यू डोंट गेट अ रैंक यू विल रिपेंट, दैट बिकेम एन एंकर। एंड देन आई थॉट कि ओके, आई शुड स्टडी विद अ रैंक in my mind. Definitely I was not looking at AIR1, I was looking at somewhere between. So that point of time we used to get for foundation till rank 30. So I was thinking between 25 and 30 if I get, that will be more than enough at that point of time. Sir, you secured all India rank in all the 3 level of CA examination. We also want to know what are the top 3 things that contributed in your CA success journey. First thing is 100% conceptual clarity. That was very, very important. Just to add on, though I am a teacher, I teach CA students, I teach CPA students and all of that. That point of time, I used to hate coaching. So I did not go to any coaching institute. I did everything on self-study basis only. I used to attend some basic, what do you call? I used to attend basic tuitions for, we used to have something called as eligibility certificate. So there also nothing great used to be taught. So all the preparation for my foundation, that is PE1, PE2 and final, was on self-study. So my focus was on conceptual clarity, 100%. And the second most important thing I think I did at that point of time was, I was always solving the past exam papers. In fact, for cost accounting paper at PE2, I solved the compiler from 1982 till 2002 or 2004 they used to publish. So all those questions I had solved so that I get a good hold on the papers being tested in the examination. And the third thing is multiple revisions. Whichever topic I was stuck at, I used to keep on revising. So conceptual clarity, good amount of practice with enough number of revision. I think that was the thing that helped me get ranks. Sir, nowadays so many resources are available in the market. Also, स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि टीचर उनको सब कुछ एक ही जगह पे लाके दे दे, एग्जाम एनालिसिस भी दे दे। आई वांटेड टू नो कि इसका एग्जाम के रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। So in fact आपने एक
बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन पूछा है मैं कहूँगा यहाँ पे कि सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर मैं हमारे टाइम की बात करूँ, मतलब आज 20 साल हो गए करीब सीए जर्नी स्टार्ट करके। दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मटेरियल का क्वालिटी भी ग्रेट नहीं था, कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं थे। वी वेर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ रेफरेंस बुक्स। तो हम तो मतलब जैसे इनकम टैक्स के लिए सिंघानिया, गिरीश आहूजा, ऐसे अलग अलग बुक्स लेके हम पढ़ते थे। अगर वो जर्नी और आज का टाइम में अगर कंपेयर करूँ तो आज तो रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी। आपको जितना चाहिए उतना कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, जितना चाहिए उतना मटेरियल आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज मिल जाएगा। एक तो सबको सब कुछ कवर करना रहता है। तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि एक जगह से क्लास लेंगे और वो 10 फैकल्टी के नोट्स रेफर करेंगे। उससे क्या होता है कि एक फोकस प्रिपरेशन नहीं होता है। और सेकेंड चीज क्या है कि ये जो रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है, स्टूडेंट्स का ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हर चीज उनको फैकल्टी आके बताए। मतलब मैं तो आजकल यूट्यूब में ये देख के परेशान होता हूं कि हर छोटे से छोटे चीज के लिए 10 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ, उसके लिए 10 वीडियोस, एक्सप्लेनेशन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन ये हो गया, मुझे ये लगता है, और ये कुछ पर्सनली स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सारा इंफॉर्मेशन फैकल्टी जस्ट लाके उनके स्क्रीन पे दे दे। अभी आता कहां से है, क्योंकि अब स्कूल में भी बहुत स्पून फीडिंग होने लग गया है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत स्पून फीडिंग होने लग गया है। एंड जब हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल कोर्स, यहाँ पे स्टूडेंट का सेल्फ एफर्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट स्टूडेंट क्या करता है, वो एक किसी थर्ड रिसोर्स पे डिपेंडेंट रहता है कि हाँ, मैं इस फैकल्टी के पास जाऊंगा या मैं इस रिसोर्स से पढ़ाई करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। खुद के जो एफर्ट्स है वो शायद थोड़े कम पड़ रहे हैं अभी। इसलिए मैं बहुत स्टूडेंट से जब मैं मिलता हूं, तो जैसे कल ही एक मैराथन सेशन था आईसीएआई में, पूरे क्लास में से कोई भी स्टूडेंट ने प्रीवियस अटेम्प्ट जैन 26 अटेम्प्ट का पेपर देखा भी नहीं है। तो मैंने पूछा, यार तुमने देखा क्यों नहीं जैन 26 का पेपर? सर जैन 26 का पेपर है ना, वो पेपर मे 26 में थोड़ी आएगा। तो सेलेक्टिव स्टडी बहुत ज्यादा हो गया है। सबको ऐसे चाहिए कि 100 क्वेश्चंस हमें दे दो, 150 क्वेश्चंस हमें दे दो, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मटेरियल हमें दे दो। उससे क्या हो रहा है कि प्रिपरेशन थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि वो फुल फ्लेज्ड कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए 100 आवर्स, 80 आवर्स का फास्ट ट्रैक क्लास, और वो फास्ट ट्रैक क्लास सुन के वो एग्जाम में लिखना चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, जहां पे स्टूडेंट को ज्यादा थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए टू कंप्लीट द फुल सिलेबस। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, क्लासेस से भी हो सकता है, बट 100% एक बार तो कंप्लीट करना चाहिए। सर, स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन होता है कि स्मॉल फर्म से करना चाहिए या बिग फर्म से। सर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब इम्पैक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली अगर बिग 4 का ब्रांड रहता है तो आपको एडवांटेज रहता है इन द फ्यूचर करियर फॉर फर्स्ट जॉब। ओके, मेरे केस में बिकॉज मुझे रैंक्स आ गए थे तो आई थिंक वो थोड़ा एक्सटेंड तक कवर हो गया था। एंड जो फर्म में ज्वाइन किया था, सो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप कोई सीए फर्म चूज करें, ऐसा सीए फर्म चूज करो जहां पे आपको 3-4 एरियाज में आपको एक्सपोजर मिले। ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है, स्टैच्यूटरी ऑडिट हो गया। ऐसा ना करें कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फाइलिंग का काम आप देख रहे हो। आप ये देखो कि आपको एक बैलेंस्ड एक्सपोजर मिले। और क्या होता है ना कि जब कंपनीज हायर करती हैं, थोड़े कंपनीज का रिक्वायरमेंट रहता है कि हाँ, बिग 4 आर्टिकल्स और बिग 6 आर्टिकल्स आर प्रेफर्ड, बट रिमेनिंग कंपनीज का ये नहीं रहता कि आपको बिग 4 या बिग 6 से ही करना है। आपको अच्छा एक्सपोजर रहना चाहिए। तो अगर आपने सीखा अच्छा है 2 इयर्स में, तो आप उस नॉलेज के बेसिस पे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और एक और चीज स्टूडेंट्स के लिए, जब कोई कंपनी आपको हायर करती है, वो आपके काम के बारे में पूछती है। वो आपको फर्म के बारे में नहीं पूछती है। आपने क्या क्या काम किया, आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, आपने कैसे कैसे वैल्यू ऐड किया, ये पूछा जाता है। ये एक बात हो गई। और दूसरी एक और चीज, अगर स्टूडेंट्स के पास टाइम है और इंटरेस्ट है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर कॉर्पोरेट करियर। सर, इस 3 साल की आर्टिकलशिप में आपने क्या सीखा? लाइक सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स और माइंडसेट में आपके क्या चेंजेस आए? मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, ये फर्म में 8,000 स्टाइपेंड है, ये फर्म में 10,000 स्टाइपेंड है, तो मैं 10,000 स्टाइपेंड वाले फर्म में ज्वाइन करूंगा। उससे इंपॉर्टेंट ये है, वो 2 साल का जो पीरियड है, वहां पे आप सीखोगे क्या, कितना सीखोगे। अब जब मैं मेरे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस का बात करूं, तो मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या था, क्योंकि फर्म में सिर्फ 5 या 6 आर्टिकल्स ही थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
मेरे पास अपॉर्चुनिटी था टू इम्प्लीमेंट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने खुद से वहाँ पे इन्वॉल्व होकर सर के साथ ऑटोमेट किया, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना हुआ, काफ़ी चीज़ें जैसे सेंट्रलाइज करना हुआ, सर्वर वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये सब एस्पेक्ट्स में क्या है, क्योंकि फ्री हैंड मिल गया मुझे, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड आर्टिकल्स थे और 1 साल के बाद मैं सीनियर आर्टिकल बन गया, तो उसके वजह से वो एडवांटेज था कि हाँ, क्या क्या चीज़ हम सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे हम प्लान बेटर कर सकते हैं। ये सब शायद अगर मैं बिग फोर में करता तो मैं उतना ज्यादा नहीं सीख पाता, क्योंकि इन अ बिग फोर जो आपको कहा जाता है या जो क्लाइंट दिया जाता है आपको उसी हिसाब से उनके सिस्टम के हिसाब से करना है। यहाँ पे मुझे सिस्टम इंप्लीमेंट करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था। सर, आपके सीए आर्टिकलशिप के दौरान कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो आपको आज भी याद आते हो? आ, दो चीजें हुई थी। एक तो वन ऑफ द क्लाइंट के लिए AS3 फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ था जिस साल में ज्वाइन किया था, और वो क्लाइंट मेरे पास ही था। तो प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है मुझे, आज भी मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था। ऐसा नहीं कि एग्जाम के क्वेश्चन में कर रहा हूँ, एक प्रॉपर फुल फ्लेज बैलेंस शीट एंड P&L के लिए मैंने किया था। और काफी बार ये होता था कि और कोई क्लाइंट्स पे जाते थे और वहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। स्पेशली मुझे याद है कि एक्सेल में, स्पेशली मुझे याद है कि नरेशन से इनवॉइस नंबर एक्सट्रैक्ट करना, अभी तो चलो AIN चैट GPT सब कुछ है, एक्सेल यूज करके एक नरेशन से रैंडम जगह से इनवॉइस नंबर एक्सट्रैक्ट करना, वो सब के लिए जब मैंने फॉर्मूलेज वगैरह जब मैंने सीखे, इट वाज ऑल सेल्फ लर्निंग। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ तो सीखा है और कुछ कंट्रीब्यूट करके हम जा रहे हैं। आपके आर्टिकलशिप का लास्ट ईयर कैसा रहा था? और इसको आर्टिकलशिप को स्टार्ट करने का सही राइट टाइम क्या होता है सर? तो अगर मैं मेरी खुद की जर्नी की बात करूँ तो एज ए टोल्ड अर्लियर, मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए थे। और मैंने क्या किया था, फर्स्ट ईयर ऑफ माई आर्टिकलशिप, दैट वाज 2007, फर्स्ट 6 मंथ्स मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आई वाज इवन शॉर्टलिस्टेड फॉर IIM शिलोंग। जैसे कैट एग्जाम खत्म हुआ था उसके बाद मैंने इमीडिएटली FR एंड AFM का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था सेल्फ स्टडी बेसिस पे। तो FR के लिए सॉरी FR के लिए MP विजय कुमार सर की बुक थी और AFM के लिए पट्टाभिराम सर की बुक थी। ये दोनों बुक मेरे लिए रिसोर्स थे, प्लस इंस्टीट्यूट में जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, RTP और पास्ट एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस, ये सब कंबाइन करके मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर लिया था। तो अगर कोई मुझे पूछे, गिवन दैट आपके पास 2 years का आर्टिकलशिप का टाइम है, उसके बाद 8 months का स्टडी पीरियड है, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, जैसे ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करो, फर्स्ट 2 months में अपना SPOM, सेट ए बी सी डी खत्म कर लो और उसके बाद FR एंड AFM से आपको स्टार्ट करना है। बहुत स्टूडेंट्स अभी क्या गलती कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूं कि क्योंकि हमारे पास 6 months या 8 months का टाइम है आफ्टर आवर आर्टिकलशिप, हमें लगता है वो 8 months में हम सारा खत्म कर लेंगे। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 5 सब्जेक्ट्स हमें खत्म करना है और ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए 8 months इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि 4 months तो आपका रिवीजन में ही चला जाएगा। तो फर्स्ट 4 months में 5 सब्जेक्ट्स फिनिश करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी स्टार्ट करो। टैक्सेशन पेपर आप लास्ट में कर सकते हो, बट फर्स्ट 3 पेपर्स FR, AFM एंड ऑडिट आपको विद इन फर्स्ट 1.5 year या 2 year ऑफ आर्टिकलशिप ही आपको खत्म करने हैं। सर, एज अ टीचर यू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास रोज नए स्टूडेंट्स आते हैं, रोज नए माइंडसेट्स आते हैं। तो व्हाट इज दैट वन माइंडसेट कि आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये स्टूडेंट रैंक ला सकता है? तो मैं सिर्फ रैंकर की पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रैंकर या क्वालिफाइंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। तो हम 2-3 चीजें देखते हैं, या मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और हमने काफी अच्छे से स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो हमारे साथ फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तक रहे कि हाँ, ये स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, दिस स्टूडेंट इज अ पोटेंशियल रैंक होल्डर कैंडिडेट। तो काफी बार काफी क्लोज टू रैंक भी गए हमारे स्टूडेंट्स। तो अगर आप मुझे एट्रीब्यूट पूछोगे, जो भी स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पूछते हैं या डाउट्स पूछते हैं, उनके डाउट्स थोड़े हायर लेवल के रहते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के डाउट्स आते हैं। अगर मैं CA फाइनल स्टूडेंट की बात करूं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क अस बेसिक क्वेश्चन जो उन्हें CA इंटर में ही पता होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, हम इन्वेंट्री CA इंटर में पढ़ते हैं, वी स्टडी द सेम थिंग इन CA फाइनल। तो CA फाइनल स्टूडेंट से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप CA इंटर वाले क्वेश्चन मुझे वापस ना पूछो, ठीक है, डाउट रह सकता है बट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे वो गैप नहीं रहना चाहिए। तो जहां पे स्टूडेंट का CA इंटर में ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, वो उसको फाइनल में रैंक लाना थोड़ा टफ हो जाता है।
और जो भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि भाई जिन्होंने एग्जामिशंस ला के पास किए हैं या जिन्होंने क्या बोलते हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, रैंक्स लेके आए हैं, दो तीन चीजें उठ के आती है। एक तो जैसे ही सीए इंटर का रिजल्ट आता है ये सीए फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट। सेकंड, ये फैकल्टी के नोट्स को पे रिलाई करते हैं, साथ में ये लोग आईसीएआई का मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंस के साथ कवर करते हैं। भले ही हमारा मटेरियल सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है, सारे क्वेश्चंस कवर करता है, वो एक रीडिंग स्टडी मटेरियल का डेफिनेटली देते हैं। और थोड़े स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एजुकेशनल मटेरियल, उसे भी रेफर करके थोड़ा और अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव करते हैं। उससे क्या होता है, whenever there is a unknown question in the examination they can handle it better, उनके पास वो हैंडल करने का एबिलिटी रहता है। तो ये डिफर करता है between someone who is getting a rank or passing with good marks versus someone who is not able to pass। तो अगर मैं not able to pass कैटेगरी की बात करूं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं, ये मेरा परसेप्शन नहीं है, हमारे पास डेटा है कि अगर स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किया 100% सिलेबस, 30% 40% ही कंप्लीट किया है, तो पास होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दे टेक लेक्चर्स लाइक एज इफ दे आर वाचिंग नेटफ्लिक्स, कि मैं ठीक है सामने कुछ चल रहा है हमें देखना है, वैसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। और पास्ट पेपर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे फोकस करते कि हाँ मैं 100 क्वेश्चंस करके जाऊंगा, या मैं ये, और थोड़े स्टूडेंट्स तो मतलब सरप्राइजिंग लगता है मुझे, सम चैप्टर्स छोड़ के जाते हैं, फॉरेक्स छोड़ के जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के जाएंगे, ऑडिट में से एनबीएफसी के ऑडिट छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, डीटी में से इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग छोड़ के चले जाएंगे। उसके वजह से जब आप आपका स्कोप नैरो कर देते हो, पास होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इतनी सारी सालों की मेहनत के बाद में आखिर वो दिन आता है जब सीए स्टूडेंट्स का आखिरकार रिजल्ट लगता है। जब आपका रिजल्ट लगा था तो आपके रिएक्शंस कैसे थे? तो जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल, फाउंडेशन जैसे मैंने कहा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, और वो मेरा सबसे मेमोरेबल रिजल्ट है। हम कॉलेज से रिटर्न आ रहा था, मिडवे मेरा फ्रेंड का कॉल आता है एंड उसने मुझे कहा कि उसे कुछ 308 या 310 मार्क्स आए हैं। तो मैंने उसको बोला यार बहुत अच्छा, 310 में तो रैंक आ गया होगा। तो बोलता नहीं यार रैंक नहीं आया है, इस बार तो ऑल इंडिया रैंक 1 को 352 मार्क्स आए हैं, तो 310 को तो 30th रैंक आना पॉसिबल नहीं था, तो मुझे तो रैंक नहीं आया। तो मतलब ठीक है, अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि मैं 315 या 310 स्कोर करूंगा और मुझे 25th रैंक आ जाएगा। जैसे इसने कहा कि AR 1 को 352 है, मैं तो मेरा पूरा होप ही चला गया। उसके बाद जैसे मैं घर के पास पहुंचा तो आई वेंट टू एन इंटरनेट कैफे, वेबसाइट लोड नहीं हो रहा था, आई केप्ट ट्राइंग। उसके बाद 2-3 फ्रेंड्स के कॉल आए मेरे पास कि सूरज यार यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। तो मैंने दो फ्रेंड्स को तो मैंने डांट दिया था कि भाई मेरे साथ मजाक मत करो, यहाँ पे रिजल्ट्स देखना नहीं हो रहा है, साइट लोड नहीं हो रहा है। देन फाइनली जब साइट लोड हुआ और मैंने देखा कि हाँ मेरा रोल नंबर 1260 आई थिंक, हाँ 1260 रोल नंबर डाला, पिन तो नहीं रहता था। कैप्चा डालने के बाद जब मार्क्स देखा और रैंक देखा, मुझे भरोसा नहीं था। सबसे पहले मैं घर कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, आई डिडंट हैव माय लंच दैट डे। मैं घर पहुंचने के बाद मैंने भैया को वापस फोन करके बोला कि यार ये रोल नंबर है, एक बार वापस चेक करके बता दो कि हाँ सही में ऑल इंडिया रैंक 1 है या नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लाइफ में कि हाँ ऑल इंडिया रैंक 1 आया। उसके बाद जब मैं सीए इंटर में पहुंचा, बिकॉज फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ था, तो एक्सपेक्टेशन था, खुद पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत प्रेशर था कि भाई मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है। वो प्रेशर के चक्कर में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, बीमार हो गया, और जब मेरा रिजल्ट आया तो आई हैड फीवर दैट डे। तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने चेक किया और उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रैंक 4 आया है। तो वो थोड़ा एक सेटबैक जैसा लगा कि 4-5 मार्क्स से ऑल इंडिया रैंक 3 रह गया। फिर फाइनल के लिए मैंने जैसे पहले बताया, फिर उसके बाद प्रेशर लेना छोड़ दिया, आराम से फ्री माइंड से प्रिपेयर किया कि हाँ अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से एग्जाम लिखेंगे, रिजल्ट जो आना है वो आएगा। हाँ मेंटली विजुअलाइजेशन ये जरूर था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक तो लाना है। तो मेरे स्टडी टेबल के ऊपर मैं वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 का एक स्टिकर लगा के रखता था और एक डायरी में लिखता था कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, सो दैट आई गेट ऑल इंडिया रैंक। वो एक प्लान डेफिनेटली था। सर सीए एक बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी है, ऑलमोस्ट 5 इयर्स की। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि 5 इयर्स में आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है कि यार ये मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ हुआ, 2 बार हुआ था। एक तो फाउंडेशन के मैथ्स पेपर में हुआ था,
एक्चुअली द थिंग वाज कि सबने डरा के रखा था कि अगर आप एक गलती करोगे तो आपके इतने मार्क्स कट जाएंगे। तो फाउंडेशन में मैथमेटिक्स में एक दो गलतियां हो गई थी, तो वो डर गया था मैं। फिर जब मैं सीए इंटर में आया तो सीए इंटर में एक जो हमारा पेपर हुआ करता था, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मई 2007 की बात है, ठीक है। 2006 में PE1 था, 2007 में PE2 था। मेरे हिसाब से उस टाइम तक, और आई थिंक उसके बाद भी काफी टाइम तक, वो लेवल का पेपर नहीं आया था। इतना डिफिकल्ट पेपर था कि नेक्स्ट डे तो गैप नहीं मिलता था, नेक्स्ट डे क्लास में अटेंडेंस हाफ हो गया था। और मैं घर आके मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि क्या मुझे 45-50 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। मतलब पेपर ऐसा था कि इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से थियरी क्वेश्चन दे दिया, सर्विस कॉस्टिंग से 2 नए क्वेश्चंस डाल दिए, एक क्वेश्चन आता था 2 डाल दिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीए फाइनल से उठा के रेशियो का क्वेश्चन डाल दिया, वो अभी भी है स्टडी मटेरियल में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अभी भी वो क्वेश्चन इंटर के स्टडी मटेरियल में है, वो अभी भी पेपर मुझे याद है, पेपर मेरे पास है भी। इतना डिफिकल्ट पेपर था कि नेक्स्ट डे अटेंडेंस वाज हाफ, और मैं बस यही प्रे कर रहा था कि भगवान पास करवा देना कॉस्टिंग में। बट थैंकफुली आई थिंक काफी सारा ग्रेस मार्क भी मिला होगा, ठीक है। अब सर्टिफाइड कॉपीज तो नहीं है मेरे पास, बट डेफिनेटली काफी सारा ग्रेस मार्क मिला उसमें। तो वो पेपर में मार्क्स अच्छे आ गए और मेरा इंटर हो गया। फाइनल में जब आया तब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक पेपर, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारा न्यू सिलेबस का। पेपर देखते ही मेरे तो होश उड़ गए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आंसर कैसे करना है। और जब जिस दिन रिजल्ट आया था सीए फाइनल का, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम का मार्क्स देखा कि आई शुड पास, एंड देन आई डायरेक्टली वेंट टू चेक ऑन द रैंक। आपको सुन के सरप्राइजिंग लगेगा, उस पेपर में मेरे सिर्फ 44 मार्क्स आए थे सीए फाइनल में। तो 2 बार कॉस्टिंग और ये 2 पेपर में तो जरूर डाउट था कि भैया शायद हो सकता है कि मैं पासिंग मार्क्स भी क्रॉस ना करूं। सर, यू सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक इन सीए एग्जामिनेशन, तो क्या रैंक जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर देता है या नॉन रैंकर्स के कंपेयर में इजी बना देता है? 2 चीजें होती है। वन, डेफिनेटली शॉर्ट लिस्टिंग में इट बिकम्स इजियर, बट आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द कॉम्पिटिशन बिकम्स मोर डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आफ्टर आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 2 इन सीए फाइनल, वी वर इन्वाइटेड बाई HUL, PNG, तो ये लोग रैंक होल्डर्स को अलग से बुलाते हैं, ठीक है। तो जब मैं HUL के इंटरव्यू के लिए गया, उनके पास पोजीशन खाली थी एक, दे वांटेड टू हायर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे हैड कॉल्ड 89 रैंक होल्डर्स। तो आप सोचो कंपटीशन कितना डेंस हो गया वहां पे। 89 चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने रैंक्स लाई है अभी, मतलब रैंक 1 to 50, 89 में से उन्हें सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। तो शॉर्ट लिस्टिंग में इजी है, बट वहां पे जाने के बाद जब आप अपने लेवल के 90 और लोगों के साथ जब आप इंटरव्यू में रहोगे, ग्रुप डिस्कशन में रहोगे, तो फिर परफॉर्म कर रहा एक वो टफ हो जाता है, ठीक है। और हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग में डेफिनेटली इट इज मोर हेल्पफुल। जैसे आप कहते हो कि आपको रैंक है, तो आप ये मान के चलो कि अगर कोई जॉब के लिए 5 स्टेप क्रॉस करने हैं, रैंक आने की वजह से आपके 2 स्टेप क्रॉस हो जाते हैं। बट मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, और ये नॉन रैंक होल्डर्स के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, ये बहुत मैटर करता है। मैंने देखा है रैंक होल्डर्स इन एन इंटरव्यू या इन ग्रुप डिस्कशन, जिन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया वो ग्रुप डिस्कशन में, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, मार्क्स आ गए, हम सीए बन गए हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। आपको ये बताना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। बेसिकली आपके पास एक अच्छा सेलिंग स्किल रहना चाहिए कि आप आपके खुद के स्किल्स को सामने वाले कंपनी को कैसे बताओगे कि हाँ ठीक है, मैं ये वैल्यू ऐड कर सकता हूं आपके कंपनी के लिए। ये बहुत ही जरूरी है। तो रैंक से हाँ 1-2 स्टेप हम आगे चले जाते हैं, बट देन उसके बाद फिर वही है, कम्युनिकेशन स्किल, कंट्रीब्यूशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सब बहुत मायने रखता है। और स्पेशली अब तो जब हम चैट जीपीटी, AI और ये सब की जब हम बात करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मोर एंड मोर हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। हर अटेम्प्ट में 10,000 12,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के आते हैं, उसमें रैंक्स कितने को मिलती हैं? 80, 90, 100। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 12,000 स्टूडेंट्स को कुछ आता नहीं है, ठीक है। और ड्यूरिंग द जर्नी काफी लोगों को देखा है कि आफ्टर कवरिंग अप 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया करते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूँ कि रैंक होल्डर रहना बहुत ज्यादा ऐसे मैंडेटरी नहीं है। हाँ, रैंक होल्डर है, आपको उससे थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बट आप आफ्टर हैविंग क्लियर्ड इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स
फिर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो. मेरे फ्रेंड्स भी है काफी, लाइक आफ्टर पासिंग इन आफ्टर राइटिंग 2 times or 3 times they have cleared and they are doing really good. काफी बड़े बड़े कंपनीज में काफी अच्छे पोजीशंस पे आज वो लोग पहुंच चुके हैं. तो ये नहीं है कि सिर्फ रैंक आता है तभी आप बहुत आगे जाते हो. हाँ, रैंक आने से थोड़ा रास्ता इनिशियली आपका आसान हो जाता है. Agree. Over to you, Soham. यस सो सर अभी जैसे न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव बन गया है कि जो न्यू कोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू लास्ट वन बिकॉज अभी उसमें एमसीक्यूज भी आ गए हैं. एमसीक्यूज इज लाइक अगर लग गया तो 2 मार्क्स, नहीं गया तो डायरेक्ट 2 मार्क्स आउट हो जाते हैं. पहले हम कुछ भी लिख के आ सकते थे, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स कुछ तो मिलता था. तो अगर हम इसकी बात करें कि हाँ सर न्यू सिलेबस वर्सेस 2017 सिलेबस इजी हुआ डिफिकल्ट हुआ, एक तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि लॉ एंड एससीएमपी इन्होंने बाहर कर दिया है, उससे थोड़ा बर्डन कम हुआ है स्टूडेंट्स पे. बट एट द सेम टाइम आईबीएस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया स्टूडेंट्स के लिए. 7 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा कुछ लिखना रहता है, ओपन बुक होने के बाद भी पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है आंसर, और 2-2 सूटकेस लेके जाने पड़ते हैं एग्जाम हॉल में. उससे डेफिनेटली वो आईबीएस पेपर हैज बिकम अ बॉटलनेक. एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करने से मेरे हिसाब से एमसीक्यू वाला पार्ट थोड़ा इजी हो गया स्टूडेंट्स के लिए. बट इन्होंने क्या किया है ना कि एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करने के बाद दे हैव मेड द रिमेनिंग पेपर लेंदी. तो फॉर एग्जांपल पहले कुछ अगर क्वेश्चन हमारे लिए 14 मार्क्स से 16 मार्क्स का आता था, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता था, अब सेम क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए आता है. ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन 8 मार्क 10 मार्क के लिए पूछते थे, सेम क्वेश्चन अभी लोग 6 मार्क के लिए पूछने लग गए. तो पेपर हैज बिकम लेंदी. बिकॉज पेपर हैज बिकम लेंदी, स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट. एंड ऑफ लेट इन्होंने आई डोंट नो जनरेटिव एआई यूज किया है या क्या किया है, क्वेश्चंस फ्रेमिंग ऑडिट एंड ऑल में तो इतना सारा कंटेंट है, मतलब 30-30 पेज का तो क्वेश्चन पेपर है. अब 30 पेज का क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा स्टूडेंट, लिखेगा कब, आंसर कब करेगा, तो डेफिनेटली उस एस्पेक्ट में टफ है. नॉट बिकॉज ऑफ एमसीक्यू, बिकॉज रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव हैज बिकम टफ और कंफ्यूजिंग इन दैट सेंस. और एक चीज मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि जब भी कोई पेपर में एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है या कोई गलत क्वेश्चन आता है या कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं वहां पे. भले ही एक क्वेश्चन रॉन्ग आया है, 8 मार्क का एक क्वेश्चन टफ आया है, माइंडसेट ये हो जाता है कि पूरा पेपर टफ है. जबकि एग्जाम के बाद अगर आप उसे देखोगे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते थे. तो ये मेंटल टफनेस लाना जरूरी है कि हाँ अगर एक टफ क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को मैं साइड में रख के बाकी क्वेश्चन में फोकस करके मैं अच्छे से पास कर सकता हूं. और सेलेक्टिव स्टडी हमें नहीं करना है. ठीक है, पास्ट लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया, अब इस साल ये क्वेश्चन आया, फोरकास्टिंग में नहीं जाना है. वी कैन नॉट फोरकास्ट और वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पेपर. ठीक है, बीइंग एन एग्जामिनर आई कैन टेल इट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पेपर. तो आपको पूरा 100% प्रिपेयर करके ही जाना है. सर अगर आपको पावर दी जाए कि आप सीए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ चेंजेस कर पाए तो आप वो क्या चेंज करोगे? अब अगर आप बोलोगे ठीक है, आपने पूछा है क्या करो, एक चीज ने मैं 2-3 चीजें करना चाहूंगा. ठीक है, एक अगर इफ पॉसिबल तो कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन, जहाँ पे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, स्टूडेंट के पास एक्सेल शीट रहना चाहिए जहाँ पे वो अपना बैलेंस शीट वगैरह बना के बता सके, वर्ड रहना चाहिए जहाँ पे वो अपना नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह लिख के बता सके. तो एक ये चेंज मैं जरूर चाहूंगा एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये होने ही वाला है. ठीक है, आज नहीं तो कल इसे करना ही चाहिए. क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे अगर हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि आप 10 साल का कैश फ्लो लो, मैन्युअली कंप्यूट करो, मैन्युअली उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, विच इज नॉट फेयर. तो ये एक जरूर मैं चेंज चाहूंगा. इससे क्या होगा, बिकॉज एक्सेल बेस्ड है एग्जामिनेशन, फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा, फाइनल आंसर में राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो ये एक करूंगा. दूसरा, अगर कंप्यूटराइज नहीं होता है तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी गुड, वेरी रोबस्ट, बट फिर भी क्योंकि ह्यूमन मेड सिस्टम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, क्योंकि बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं. एक मेकर चेकर इन्होंने अगर इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स हैव द राइट टू गेट देयर पेपर्स रीवैल्यूड, उससे आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है. ये दूसरा एक चीज करूंगा. और तीसरा, आई विल मूव मोर एंड मोर टुवर्ड्स एप्लीकेशन एंड रियल लाइफ टाइप क्वेश्चंस एंड सिनेरियोज, rather than जो स्टडी मटेरियल में है वही से क्वेश्चन आने वाला है. तो आई थिंक ये थोड़े चेंजेस करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा,
एंड ओवरऑल फ्रेटर्निटी प्रोफेशन के लिए आई थिंक ये अच्छा रहेगा. आपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को भी ड्राफ्ट किया है, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टीचिंग, तो आप अपना भी स्टडी मटेरियल ड्राफ्ट करते होंगे. वी वांटेड टू नो कि अगर स्टूडेंट कोई रेफरेंस बुक डिसाइड करता है तो उसको रेफरेंस बुक कैसे डिसाइड करना चाहिए, ऑल्सो उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल को कैसे लेके चलना चाहिए. तो स्टडी मटेरियल इज ऑलवेज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन. ये स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए. एंड स्पेशली थियरी पेपर्स में मैंने देखा है लोग तो ऑडिट के बुक्स को तो हाथ भी नहीं लगाते हैं, बट एक रीडिंग देना जरूरी है. वन टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जाम के लिए भी उसी से रिवाइज करते रहो. वन टाइम रीडिंग ऑफ स्टडी मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप 100 पढ़ते हो तो आपको 50 याद रहता है. अगर आप उसको कॉम्प्रेस करके सिर्फ 50 पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 25 याद रहेगा. तो ये एक करना चाहिए. बुक्स कैसे डिसाइड करना चाहिए, अगर आप किसी फैकल्टी के क्लासेस ले रहे हो तो जो फैकल्टी जो नोट्स बना के आपको दे रहा है, आप ट्रस्ट करो ऑल द फैकल्टीज का 90, 95, 96%, 99% प्रॉपर रहता है नोट्स. तो वही नोट आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप फैकल्टी के साथ फिर अलाइंड रहते हो. इसके अलावा अगर आपको कोई रेफरेंस बुक्स चाहिए, हर सब्जेक्ट के लिए मार्केट में ऑथर्स के बुक्स आपको मिलते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैं फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडेज से रिलेटेड आपको मार्केट में बुक्स मिलेंगे रिटन बाय प्रोमिनेंट ऑथर्स. टैक्सेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल यू हैव सिंगानियास एडिशन, आपके पास गिरीश आहूजा है. मनोरंजन सर तो अब नहीं रहे, बट ये जो रेफरेंस बुक्स आपको मिलते हैं मार्केट में रिटन बाय ऑथर्स, उससे आपके प्रिपरेशन में आपको और थोड़ा हेल्प हो जाता है. तो उस हिसाब से आप इंस्टीट्यूट मटेरियल, फिर फैकल्टी नोट्स, और आपके पास अगर टाइम है तो आप एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स भी रेफर कर सकते हो. मैंने टैक्सेशन के लिए 3 बुक्स रेफर किए थे, वो एक्सेसिव था. 2 बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट. तो जस्ट फॉर सम एडिशनल नॉलेज यू शुड डेफिनेटली लुक एट सम ऑथर्ड रिटन. सर, सीए एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. ऐसे सिचुएशन में आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो पैनिक ना करें और अपना फोकस मेंटेन रखें. ऑल्सो इंस्टीट्यूट का न्यू टेक कि अब सीए एग्जामिनेशन साल में सिर्फ 2 बार होंगे, इस पे आपका क्या व्यू है. तो आपने 2 चीजें पूछी. एक तो सिलेबस आई डोंट थिंक बहुत चेंज हो रहा है. जब हम भी जर्नी में थे तो 2003 या 2004 में सिलेबस चेंज हुआ था, फिर 2007 में चेंज हुआ, फिर 2017 में चेंज हुआ, फिर 24 में चेंज हुआ. आई थिंक एज बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है, बिजनेस चेंज हो रहे हैं, नए टाइप की कंपनीज आ रहे हैं, काफ़ी स्टार्टअप है, काफ़ी ऑनलाइन है, तो चेंज होना चाहिए. मेरे हिसाब से तो थोड़ा बेटर चेंज होना चाहिए और मोर रिलेवेंट चेंज होना चाहिए. ठीक है, एक तो वो है. तो उससे स्टूडेंट्स को आई डोंट थिंक दे शुड बी कंसर्न, क्योंकि अगर अब मैं फाइनल लेवल की बात करूं, एफआर जो 17 में था 24 में भी सिमिलर है, 2 चैप्टर ऐड हुए हैं. एएफएम 90% सेम है. ठीक है, ऑडिट में थोड़े स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं, इनकम टैक्स सेम रहा है और आईडीटी भी सेम रहा है, मतलब डीटी और आईडीटी दोनों सेम रहे हैं. तो आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा चेंज की वजह से इंपैक्ट हुआ है. इनफैक्ट इन्होंने पेपर्स लाइक ईआईएस निकाल दिए हैं, पेपर्स लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, वो पेपर निकल गया है. तो उससे इनफैक्ट स्टूडेंट्स को थोड़ा बर्डन कम हुआ है. पर यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लॉ जैसा कोर पेपर या कॉस्टिंग जैसा कोर पेपर इन्हें एटलीस्ट मे बी फॉर अ 50 मार्क टेस्ट करना चाहिए था फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स, बिकॉज फ्यूचर में कॉर्पोरेट लाइफ में काफी काम आता है. ठीक है, ठीक है. तो ये दिस इज वन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माय साइड. एंड द सेकंड थिंग दैट यू हैड आस्क्ड, आपने सेकंड क्या पूछा था? सर मैंने पूछा था कि ये जो सीए फाइनल एग्जाम 2 attempts. साल में हाँ, 2 बार होंगे. ठीक है. हाँ. तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि सीए फाइनल 3 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट कर दिए, ये कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है. मैं रीजन बताता हूँ. जब ये लोग एग्जाम साल में 3 बार कंडक्ट करते हैं तो होता क्या है, जनवरी में एग्जाम लिखते हैं, मार्च में रिजल्ट आता है. तो आप जैन से मार्च के बीच में तो आप पढ़ने के मूड में रहते ही नहीं हो. आप भले ही खुद को कितना ही कह लो, जब तक रिजल्ट नहीं देखोगे तब तक पढ़ने का प्रेशर तो बनता नहीं है. अब मार्च में एग्जाम रिजल्ट आया है, आपको वापस मई में एग्जाम लिखना है. तो मार्च एंड अप्रैल 2 months इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रॉपर रिविजन. तो ये क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का फिर प्रॉब्लम क्या होता है, मई में प्रॉपरली लिख नहीं सकते एंड दे डोंट वांट टू डेफर इट टू सितंबर, बिकॉज सितंबर मतलब 8 महीने का गैप हो जाता है. तो इसके हिसाब से आई थिंक सीए फाइनल लेवल में इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है कि हाँ, अगर आपका रिजल्ट अब जैसे फॉर एग्जांपल मई का रिजल्ट जुलाई में आता है, फिर आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जुलाई का जो महीना है, 4 months है, 4 months में आप एक ग्रुप का रिवीजन अच्छे से कर पाओगे.
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमें ये भी देखना है कि काफी स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर आर्टिकलशिप, और अगर उनका वो सीए फाइनल कंप्लीट नहीं होता है, दे स्टार्ट वर्किंग समवेयर। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो वो 2 महीने का पीरियड तो सफिशिएंट ही नहीं रहेगा। एटलीस्ट विथ 4 months गैप दे कैन पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू रिवाइज एंड राइट इन द एग्जामिनेशन। तो मेरे हिसाब से फाइनल स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, अगर ये May 27 से इंप्लीमेंट करते तो बेटर रहता फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज जिन्होंने भी इनकम टैक्स 1961 में एग्जाम लिखना है, उनके लिए शायद थोड़ा सा इनजस्टिस हो गया यहाँ पे। सर, देयर इज न्यूज इन द मार्केट कि एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए जो मटेरियल होता है वो सजेस्टेड आंसर से डिफरेंट होता है। अगर इंस्टीट्यूट को इस पार्ट पे ट्रांसपेरेंसी रखने की नीड है तो आप इंस्टीट्यूट को इस मैटर पे क्या सजेशन देना चाहोगे? आई थिंक 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो जैसे ही पेपर बन के आते हैं, जैसे बाकी जगह पे होता है, जैसे आईआईटी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट कंडक्ट होते हैं, दे गिव द आंसर की फॉर फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वो एक आई थिंक प्रोसेस में है, समवेयर देयर इज अ प्रोसेस कि स्टूडेंट कैन राइट, वो लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या उनमें कंसर्न्स है, एंड आई थिंक ये सब इनकॉर्पोरेट होता है। और अगर जो मार्किंग स्कीम है, अगर स्टूडेंट्स के साथ अगर उन्होंने डिस्प्ले कर दी या फिर ट्रांसपेरेंटली अगर उन्होंने बता दिया अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर, आई थिंक स्टूडेंट को काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, उसी हिसाब से मैं मेरा प्रिपरेशन कर सकता हूँ। सर, लोग सीए एग्जामिनेशन में स्केलिंग की बात करते हैं, मॉडरेशन की बात करते हैं, स्पेशली जब एक्चुअल मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आता है। इस बारे में आपका क्या व्यू है? आई थिंक जो स्केलिंग की बात करते हैं या फिर मॉडरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मार्क्स कम नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्क्स इंक्रीज होके ही आते हैं। मोस्ट क्या, मतलब मैंने अभी तक कोई केस नहीं देखा कि स्टूडेंट के कॉपी में कुछ मार्क्स है और उसके फाइनल मार्कशीट में मार्क्स कम है। जो भी आपको बाहर कॉपीज दिखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि यार पहले मुझे 40 दिया था, उसको वापस कट करके इन्होंने 25 कर दिया, वो एट द टाइम ऑफ रीचेकिंग होता है। कभी कभी क्या होता है, थोड़े एग्जामिनर्स अगर उन्होंने अच्छे से वैल्यू नहीं किया है, वो पेपर वापस रीचेक होता है, उसके वजह से आपको मार्क्स कम दिखता है। बट ये मॉडरेशन का जो बात है या फिर मार्क्स चेंज का जो बात है, जनरली मतलब मैंने आज तक कोई ऐसा देखा नहीं कि आंसर शीट में कुछ मार्क्स है और आपके फाइनल रिजल्ट में कुछ मार्क्स है। आप देख सकते हो मार्क्स बढ़ के ही आते हैं। जब सीए इंस्टीट्यूट किसी एक ग्रुप के किसी एक पेपर को बहुत डिफिकल्ट सेट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल सीए फाइनल में या सीए इंटरमीडिएट में एक ग्रुप में केवल 3 ही पेपर हैं, उसके बाद अगर सेकंड पेपर खराब हो जाता है तो स्टूडेंट तीसरा पेपर देने ही नहीं जाता, बिकॉज कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसे केस में आप स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे कि वो ऐसे माइंडसेट में अपने आप को कैसे डील करें? देखो, बोलना मेरे लिए बहुत इजी है, बट इम्प्लीमेंट करना स्टूडेंट्स के एंड पे बहुत टफ है। ठीक है, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। एक रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ मैं इसको आपको बताऊंगा। मेरा एक फ्रेंड था, सीए फाइनल लिख रहे थे साथ में, उसका एफआर पेपर उतना अच्छा नहीं गया। तो जब उसका एफआर पेपर अच्छा नहीं गया, बहुत अपसेट हो गया था एग्जाम के बाद, और मैंने उसको बहुत समझाया कि यार ठीक है, एफआर हो गया, अब जब हम एसएफएम पे जाते हैं तो एटलीस्ट एसएफएम अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे से रिवाइज कर ले, और एसएफएम एटलीस्ट तू अच्छे से लिख ले। स्टूडेंट्स काफी काफी स्मार्ट और मेहनती स्टूडेंट था। समाउ कुछ हाफ हार्टेडली उसने एसएफएम का प्रिपरेशन किया और एसएफएम भी उसके हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया। फिर उसने क्या किया, जो नेक्स्ट 2 पेपर थे, उस टाइम पे 4 पेपर्स होते थे, ऑडिट एंड लॉ, उसके लिए तो उसने कुछ पढ़ाई की ही नहीं और उसने ग्रुप 2 भी नहीं लिखा। और जब रिजल्ट आया, आप सरप्राइज हो जाओगे, ही क्लियर्ड ग्रुप 1। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि एक हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि बहुत कुछ खराब हो गया मेरे साथ, और ह्यूमन माइंडसेट ही ऐसा रहता है कि अगर आप पर्सनल लाइफ में आपके देखते हो, नेगेटिव इंसिडेंट अगर 1 होता है तो आप उसे 10 के जैसे देखते हो, पॉजिटिव इंसिडेंट 1 होता है तो आप उसे 1 के जैसे ही देखते हो। तो आप नेगेटिव को बहुत ज्यादा बोले, अरे मेरे साथ ये खराब हो गया, मेरे लाइफ में खराब है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये माइंडसेट की वजह से क्या होता है कि पेपर शायद एवरेज गया हो बट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं गया हो, तो फिर उस जोन में जाके स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। मेरा एक ही सजेशन है, आई नो प्रैक्टिकली करना बहुत टफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ह्यूमन माइंड है। अगर पेपर खराब गया है, आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया है, आपको बहुत सारे कंसर्न्स रहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे कितने अटेम्प्ट्स हो गए हैं, ये सब रहता है। बट द ओनली वे टू डू दैट इज एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो हो गया वो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। पेपर डन, पेपर को आप रख दीजिए साइड में,
थोड़ा सा टाइम ले लीजिए अपने लिए, थोड़ा सा मेडिटेशन हो गया या फिर सिटिंग इन साइलेंस हो गया, थोड़े से अपने पेरेंट्स और के साथ बात कर लो, थोड़ा अपना माइंड थोड़ा सा रीसेट करके फिर नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कौन सा पेपर इजी आ जाए, कब कौन से पेपर में आपको शायद एग्जामेशन मिल जाए, ठीक है। तो जैसे इस बार हुआ था एएफएम का पेपर इतना खराब गया स्टूडेंट्स का Jan 26 अटेम्प्ट में कि स्टूडेंट्स ने ऑडिट में उतना एफर्ट डाला ही नहीं, बट क्या पता आपने ऑडिट में ठीक ठाक एफर्ट डाला होता तो एफआर और ऑडिट के मार्क्स की वजह से कुछ हो जाता, राइट। तो हमें अपना होप नहीं छोड़ना है, एंड तक हमें ट्राई करना है, अल्टीमेटली तो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है, जो डिसाइडेड है वही होने वाला है। बट हाँ, पेपर खत्म होने के बाद पेपर को साइड में रखिए, माइंड फ्रेश कीजिए और ये बिलीव के साथ चलिए कि शायद क्या पता एक इजी क्वेश्चन पेपर आ जाए नेक्स्ट सब्जेक्ट में, और शायद क्या पता उसमें ही एग्जामिनेशन हमें मिल जाए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आज के टाइम पे स्टूडेंट के पास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। अगर सोशल मीडिया को साइड भी कर दें तो सीए एग्जामिनेशन के ऊपर कंट्रोवर्सी, टीचर्स आपस में फाइट कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, वेरियस डिबेट चल रहे हैं। ऐसे केस में स्टूडेंट अपने आप को कैसे फोकस रखे और कैसे इन सारी चीजों से अपने आप को डिस्टेंस कर सकता है? सर, आपका क्या सजेशन है? तो आई थिंक लास्ट 3-4 साल में काफ़ी बार हो चुका है, फन फैकल्टी फाइटिंग विद अनदर फैकल्टी ओपनली, ठीक है। तो वो मुझे बहुत ख़राब लगता है क्योंकि स्टूडेंट का वैल्यूएबल टाइम जाता है। और हमारा जनरल माइंडसेट क्या रहता है, अगर कोई झगड़ा कर रहा है ना तो सब लोग को इंटरेस्ट रहता है क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्या होगा, इसका रिजोल्यूशन क्या हुआ, जबकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो अब बिकॉज हमारे इसमें सेल्फ कंट्रोल या फिर बिकॉज हमारे पास कोई नोटिफिकेशन यूट्यूब में कुछ ऐसा आइकन आ गया, अभी भी देख रहा हूं मैं May 26 के लिए ब्रेकिंग न्यूज, आईसीआई की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज, एलिजिबिलिटी ये कर दिया वो कर दिया, और उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एक बहुत सा फैंसी सा थंबनेल लगा दिया कि भैया आईसीआई ने तो ये कर दिया। अब कल ही किसी ने स्टार्ट किया है कि अब हमें एग्जाम हॉल्स में एसी चाहिए। आई एग्री, एसी से कंफर्ट मिलता है, बट आई थिंक गिवन द कंडीशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, एक बेसिक फैन और कूलर का अरेंजमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ है। अब एसी चाहिए बस, अब सब लोगों ने उस पर अपना वीडियो बनाना, अपने कमेंट डालने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर इस सबसे आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, सबसे पहली चीज़ आपको जो करना है वो है सारे नोटिफिकेशंस आपको बंद करने हैं, बिकॉज आप उतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नहीं हो कि भाई कोई नोटिफिकेशन मिस कर जाओगे तो भैया देश डूब जाएगा या फिर वर्ल्ड वार हो जाएगा या वर्ल्ड वार रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अगर मेरी बात करो तो मेरे फोन पे सिर्फ और सिर्फ OneFin का ही नोटिफिकेशन आता है और फोन कॉल का नोटिफिकेशन आता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी का भी नोटिफिकेशन फोन पे नहीं आता है। ये एक चीज करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कोई चैनल से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो चैनल को आप म्यूट कर दीजिए। ये मेरा एक हम्बल सजेशन है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ लास्ट 1 मंथ में देख रहा हूँ कि सर्टिफाइड कॉपीज के ऊपर, मार्किंग स्कीम के ऊपर, अटेम्प्ट्स को लेके इतने सारे वीडियोस बन रहे कि मतलब एक हद हो जाती है। और मुझे सरप्राइजिंग ये लगता है कि वो वीडियोस पे 100 200 कमेंट्स आ जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई चैनल आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आप सबसे पहले तो उसे म्यूट कर दीजिए या अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर म्यूट कर दीजिए, एक। दूसरा, YouTube में बिकॉज YouTube आप यूज करते हो फॉर योर स्टडीज पर्पज एंड रिविजन पर्पज, मैं ये नहीं कह सकते कि आप YouTube छोड़ दो, बट आप एक चीज क्या कर सकते हो, जैसे ही YouTube में आपने अपना रिवीजन देख लिया है, वो आप हिस्ट्री क्लियर कर देना या फिर हिस्ट्री को रखना ही मत, सो दैट नेक्स्ट डे जब आप YouTube ओपन करो आपको कुछ सजेशन दिखे ही नहीं, तो आपको सिर्फ एक ब्लैंक पेज दिखेगा। आपको जो रिवीजन करना है, FR का रिवीजन करना है, सर्च करो, वो वीडियोस देखो, अपना काम करो एंड देन वापस बंद कर दो। हिस्ट्री को रिकॉर्ड ही मत रखो, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम YouTube पे जाओगे आपको कोई भी ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग वीडियोस नहीं दिखेंगे। और आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, अगर आपको नहीं दिखेगा आप वो वीडियो देखोगे ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये सजेशन है। हाँ, इंस्टाग्राम एंड ऑल टेलीग्राम ग्रुप्स में भी बहुत सारा टाइम पास होता है, वो सबसे आप एग्जिट कर सकते हो और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हो। यूट्यूब में आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो कि हिस्ट्री रिकॉर्ड ही ना हो तो आपको कोई सजेस्टेड वीडियोस मिले ही नहीं। सर, आपके कोई एक्सपेंशन प्लान्स है? लाइक अभी आपके नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स का विजन क्या है?
कोई एक्सपेंशन प्लान लाइक न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू कोर्सेज, या फिर ऐसा कुछ आप जो अभी करना चाहते हैं या फिर कोई पाइपलाइन में है? तो आपने कहा 5 से 10 साल का विजन। 10 साल का तो हमने अभी तक सोचा नहीं है क्योंकि क्या चेंज आएगा हमें पता नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 5 years वी वांट टू रीच टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डोमेन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंच पाए, सबको ये मैसेज दे पाए कि एग्जाम पास करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा रहना है और करियर में अच्छा करना है। अल्टीमेटली गोल क्या है? करियर में सक्सेसफुल रहना है। तो सक्सेसफुल करियर के लिए जो चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है कोई सॉफ्ट स्किल चाहिए, कोई टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कोई एआई रिलेटेड स्किल्स चाहिए, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल चाहिए। सारा का सारा पैकेज करके हम एज वी ग्रो एंड नाउ बिकॉज नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ अविनाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हम साथ में इस कॉमन मिशन को आगे बढ़ाएंगे, कॉमन विजन को आगे लेके चलेंगे, जहां पे हम अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब वी आर एबल टू रीच टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स। और एक स्पेसिफिक फोकस रहता है हमारे पास जहाँ पे स्टूडेंट्स आफ्टर अ ब्रेक आते हैं। तो हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं 5 years 10 years के ब्रेक के बाद, दे वांट टू कंटिन्यू देयर जर्नी। तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, मेंटरिंग के साथ उनका क्वालिफिकेशन अगर हम करवा पाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। सर, जो ये एक्सपेंशन होगा इसमें सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का कितना रोल रहेगा? तो हाँ, जैसे मैंने कहा राइट, आफ्टर एक्विजिशन बाय अविनाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारा फोकस रहेगा टू बिल्ड मोर ऑन द सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स। तो यू विल सी इन ड्यू कोर्स, अभी तो करेंटली हमारे पास बेसिक एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है। यू विल सी मोर एंड मोर अकाउंटिंग कोर्सेज, यू विल सी मोर एंड मोर रियल लाइफ एप्लीकेशन रिलेटेड स्किल सेट। कम्युनिकेशन पे काफी ध्यान रहेगा हमारा, बिकॉज आई थिंक दैट इज वन एरिया वेयर सीए स्टूडेंट्स लैक, क्योंकि एक कैंपस इन्वायरमेंट नहीं रहता है स्टूडेंट्स के पास। तो उस एरिया पे भी हम डेफिनेटली वर्क करेंगे। एंड एआई रिलेटेड कंटेंट फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, वो भी आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। सर, अगर आपको पावर दी जाए कि आप सीए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ चेंजेस कर पाए तो आप वो क्या चेंज करोगे? जैसे मैंने पहले कहा, डेफिनेटली कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जामिनेशन, कंटेंट टू बी मोर फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी सारा कंटेंट को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स साइड। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इतना सारा कंटेंट जरूरी है, आई थिंक टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स उतना कंटेंट जरूरी नहीं है। उसको हम थोड़ा और कंसाइज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट पे भी बर्डन कम हो और रिलेवेंट चीजें वो सीख के क्वालिफाई कर जाए। हाँ, पोस्ट क्वालिफिकेशन डेफिनेटली उनको पूरा पढ़ना रहेगा, बट एट द टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन आई थिंक थोड़ा कंटेंट पे हम फोकस कर सकते हैं टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, so let's move to the next segment, that is our If You Were segment. This is the most imaginary segment of our podcast where you will be placed in a situation and you have to answer according to it. Okay, so let's start. If you were an examiner position that you was, what is the one thing students consistently do wrong in exams? They make some conceptual blunders. They are in a lot of pressure and they do silly mistakes at some steps, because of which they lose out a lot of marks. Okay, so if you were to redesign the CA curriculum, what is one change you would definitely make? Computerized based examination. Okay, if you were mentoring your younger self, what advice would you give in one line? Mentoring my younger self. The journey is stressful. Make sure you enjoy the entire journey alongside the studies. Okay, so if you were to define success beyond ranks, what would it mean to you? Make a difference in someone's life. Okay, if you were a subject in CA, which subject would you be and why? Mathematics. I love mathematics. If you were to give one brutal honest tip to a CA aspirant, what it would be? 100% syllabus completion without any compromise. If you were not a chartered accountant, what career would you have chosen? If I were not a CA, maybe a computer software engineer, a programmer, maybe a scientist. Multiple interests which arise now. Okay. If you describe your CA journey in a movie, what movie it would be? What movie?
what movie? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Wow. Or if you would like to switch your life with another person for one day, which person it would be? Some astronaut. I would like to travel to space. Okay. If you were to restart everything from zero, would you still choose CA? I guess no. Okay. Why? I think the journey requires a lot of effort, and I somehow feel that during those preparation times of CA, I didn't maybe enjoy my life to the extent I could have otherwise. Okay, and if I look back, maybe and also given that the technology is taking so much, I was always interested in mathematics and computers. Maybe that would have been another because I know what is happening in the future today. I would have actually become maybe data scientist or data analyst, maybe something of that sort. Okay, so if you could pause time during your CA preparation days, what would you do in that extra time? I would watch a lot of maybe movies, play a lot of sport. If you had a time machine with you, in what time during your CA journey you would again go back? I would go back to CA final again and do some better preparation so that I would have got All India rank 1 in CA final. Okay. Okay, so that's all about if you were segment. Now Thank you. let's move forward and start our rapid fire question. So are you ready, sir? Yeah. Okay. So let's Sorry. Long hours or smart study? study. Both. Okay. Notes making or direct learning? Direct learning followed by notes making. Revision at night or revision at morning? Day person. What was your most feared subject? Information systems, control and audit. What was your most favorite subject? Financial reporting. At final, financial reporting at final, mathematics at foundation. What's one subject yet you would remove from CA? IBS. One One guilty pleasure you still love very much. I used to sleep a lot during my CA preparation. Used to sleep a lot. Sleep at 10 o'clock, get up at 7 o'clock. Are you introvert or extrovert? Introvert initially, now have to be extrovert. Okay. One habit that you want to change. Finishing up things by the decided time. What is one strength that you are proud of? Solving problems. Okay. What's one weakness that you are working on? Doing things by the time I've committed. Theory subjects or practical subjects? Practical. What was your most stressful phase during this CA journey? CA articleship and CA final journey. Okay. So that's all done with our rapid fire segment also. Thank you. It was very nice talking with you, learning insights from you, and seeing another perspective about the CA journey that we may never know about the things happening in the background of examinations or everything. Thank you. Right. Thank you. And I think it was nice talking to each one of you in the team. You guys are doing great and happy to be on the podcast. Thanks a lot.